नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आज जो है एक मैं जो जिस जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो है कैन ए क्रिमिनल केस बी क्वेश्ड आफ्टर कन्विक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये बहुत ही काम आने वाली जजमेंट है आप लोगों के काम। तो आप जो है इसका लिंक कर दीजिए शेयर। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, आप मुझे मैंने चेक नहीं किया कि उस पर कोई आंसर आया कि नहीं आया है, कि आप लोगों का क्या इस बारे में जो है नॉलेज है। तो एनीवेज, तो आई टेक यू टू द जजमेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और अपना फीडबैक दें, लाइक का बटन दबाएं। तो धन्यवाद। चलिए मैं अब आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें जो मेन चैलेंज था, बाय वे ऑफ इंस्टेंट पिटीशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, prayer has been made on behalf of the petitioner who stands convicted of having committed offence under section 138 of the Negotiable Instrument Act in criminal case number so and so for compounding the offence under section 147 of the act। तो इसमें जो बेसिक फैक्ट्स थे वो इस तरह से है। Precisely the facts of the case as emerged from the record are that respondent number 1 instituted proceedings under section 138 of the act in the court of Learned JMFC at such and such place, alleging therein that accused with a view to discharge his liability issued check amounting to rupees 4 lakh, but fact remains that aforesaid check on its presentation to bank was dishonored। तो ये इसके जो बेसिक फैक्ट है, डिसऑनर हुआ, फिर उसमें जो है नोटिस दिया, जो भी इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड करने के बाद जो है फिर जो है वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के पास गया। तो ऑनरेबल जो ट्रायल कोर्ट में है, इसमें जो है उनकी कन्विक्शन हुई है और फिर उसमें आगे अपील की गई है। तो अपेलेट कोर्ट में भी जो है उसमें कन्विक्शन को अपहेल्ड किया गया। फिर वहाँ पे एक रिवीजन भी डाली गई, तो वो रिवीजन भी जो है उसमें नहीं अलाउ की लोअर कोर्ट ने, ये कह के कि भी इसमें कन्विक्शन हो चुकी है। तो अल्टीमेटली जो है इनमें पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज हुआ और पैरा 5 में जो नोट किया गया, आफ्टर पासिंग द जजमेंट डेटेड 15 जून 22 passed by this court, thereby dismissing the criminal revision petition having been filed by the petitioner accused, parties have entered into compromise whereby petitioner accused has paid the entire amount of compensation to the respondent, and in this background petitioner has approached this court in the instant proceedings filed under section 482 CRPC, read with section 147 of the act, praying therein for compounding of the offence। तो ऑनरेबल कोर्ट ने काफी सारा केस लॉ वगैरह डिस्कस करने के बाद जो इसमें पहले से हमने ऑब्जर्व किया, जो क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन था, दैट वाज दो पार्टीज हैव रिजॉल्व्ड टू सेटल देयर डिस्प्यूट एमिकेबली इंटर से देम एज इज एविडेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, बट नाउ question which requires to be decided at this first instance is whether this court, after upholding the judgment of conviction and order of sentence recorded by the court below, can proceed to review its own judgment dated 15 June 22, whereby criminal revision petition having been filed by the petitioner accused came to be dismissed or not। तो फिर सारा केस लॉ वगैरह इसमें डिस्कस करने के बाद, एट लेंथ और फैक्ट्स को अप्रिशिएट करने के बाद, ऑनरेबल कोर्ट ने फिर जो डिसीजन दिया पैरा 14 में, वो ये है, कॉन्सिक्वेंटली इन व्यू ऑफ द डिटेल्ड डिस्कशंस मेड हियर इन अबव एज वेल एज लॉ लेड ऑन बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, parties are permitted to get the matter compounded in the light of the compromise arrived inter se that accordingly judgment of conviction and sentence recorded by the London trial court is quashed and set aside, and petitioner is acquitted of the charge framed against him. His bail bonds are discharged. Since petitioner accused is lodged at sub jail Mandi, release warrants be prepared accordingly and sent through fax email to the superintendent of sub jail Mandi immediately the petition is disposed of along with pending application if any। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, जो कन्विक्शन होने के बाद, अपील डिसमिस होने के बाद, रिवीजन भी डिसमिस होने के बाद क्वेश्चन हुई है, और इसमें बहुत सारा डिटेल में केस लॉ जो है ऑनरेबल कोर्ट ने डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो चलिए मैं अब आपको इसका रेफरेंस देता हूँ कि ये कौन सी जजमेंट है और ये कब की जजमेंट है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला, ये CRMMO नंबर 1232 ऑफ 2022 है, 22 दिसंबर 2022 का फैसला है। टाइटल है आलमचंद वर्सेस चमन लाल एंड अनदर, और ये जो डिसीजन है बाय द बेंच ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप शर्मा कोर्ट से आया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को जो है काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा ये डिसीजन, और ये काफ़ी आप लोग जो है
इसको आगे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करती है आपका कन्विक्शन, तो आप इसको सेव रखें। मैं वैसे इसको जो है प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगा, जो है चेक बाउंस केस वाले में भी, क्रिमिनल वाले में भी, तो आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे केसेस है अपडेट किए हुए, और टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। अगर आप कभी मिस कर जाते हैं तो यू कैन सिंपली गो check the criminal law playlist, or you'll find so many judgments there. So thank you very much, and once again, before I part my ways, I think I request you to kindly subscribe more and more, share it more and more, and also click on the like button, and also give your feedback, which I always wait for very anxiously and fondly. Thank you very much to all of you. Have a good day. God bless you all.